students, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. My name is Deepthi. Students, you know that maths is all about numbers. Maths is all around us, right? So let's find it. So let's start our chapter, numbers up to 200. 200 तक numbers हम के बारे में जानेंगे. Okay, so what we have learned, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? Numbers up to 100 पढ़ा है, number names, comparing of two digit numbers and ascending and descending order. And what we will learn now? इस chapter में हम क्या सीखेंगे बच्चों? Numbers up to 200, numbers on the abacus, place value, expanded form, comparing of numbers, ordering of numbers and cardinal and ordinal numbers. Okay, so let's connect. Deepak and Preeti are at a sweet shop. They want to buy many kinds of sweets for their friends. So Deepak and Preeti sweet shop में हैं, वो अपने friends के लिए बहुत सारी तरह की sweets लेना चाहते हैं. Okay. So who bought more sweets? Put greater than or less than sign in the box and write the name. Okay. So number one, Preeti bought 68 gulab jamuns and Deepak bought 50 gulab jamuns. Okay. So 68 is greater than 50. So who bought more gulab jamuns? Of course, Preeti. Number two, Deepak bought 92 laddus and Preeti bought 78 laddus. So 92 is greater than 78. और किसने ज़्यादा खरीदे? Deepak. Recall exercise. Match the columns. 35 number name है 35. Where is 35 number? और 35 को कैसे लिखा जाता है? 3 tens and 5 ones. Okay. 69. 69, that means 6 tens and 9 ones. 54, 5 tens and 4 ones. And 28, 2 tens and 8 ones. Okay. Getting ready, numbers up to 200. Okay, so अभी तक आपने बच्चों previous class में 100 तक numbers पढ़े थे. Okay. See, this is one block. It is 1. और 1 क्या है आपका? 1 digit number. Okay. ये आपका देखिए ग्रुप है 10 ब्लॉक्स का, तो ये है आपका 110 एंड 10 आपका देखिए 2 डिजिट नंबर है. सो 10 वंस को आप लिख सकते हैं 10 वंस इज इक्वल्स टू 110. नाउ दिस इज अ ग्रुप ऑफ 10 टेंस मीन्स 100 एंड 100 आपका 3 डिजिट नंबर है 1 2 3 एंड अब 10 टेंस आपका किसके इक्वल होता है 100 के. ओके, नाउ 100 and 1 is 101. 100 and ये 5 blocks है ना आपके ones के, so 105. Okay. Similarly, 100 and 12. 112. 100 and 20, 27. 127. 100 ये आपका 33. 145. 100 ये आपका 50 है, so 150 and ये आपका 100 ये है 60 and 2 162. Okay. Similarly, 170 and 3 173. This is 186. 198 and 100 plus 100 आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 200. Okay. Now let's do exercise 1.1. A part, write the numbers for the following number names. Number 1, 128. So how will you write? 128. Okay. Number 2, 170. 170. Number 3, 187. 187. Okay. B part, write the number name for each of the following. Okay. Figures में आपको दिया है number name लिखना है. So this is 126. 126.
आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को स्पेलिंग्स लर्न होंगी, एंड इफ नॉट देन डू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स. ओके, नंबर 2 इज 148. 148. ओके, थर्ड वन इज 187. ओके, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर नेम लिखेंगे, राइट. सी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. देखिए काउंटिंग है 101 से 200 तक आपको कंप्लीट करनी है, और बीच बीच में कुछ नंबर्स आपके पास गिवन भी हैं. ओके, सो जो मिसिंग नंबर्स हैं आपने उन्हें लिखना है. ओके, सो डू इट योरसेल्फ. नंबर्स ऑन द एबेकस. एबेकस है क्या? एक्चुअली एबेकस ना एक टूल है जिसको यूज किया जाता है नंबर्स को शो करने के लिए, एंड ये आपको किसी भी नंबर्स को रीड करने में हेल्प करता है, लिखने में हेल्प करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें 100 कैसे हम रीड करेंगे एबेकस में? सी 100 वंस या फिर 10 टेंस को हम लिखते हैं 100. ओके, और किस तरह से शो किया गया देखिए, 100 प्लेस में देयर इज अ 1 बीट, एंड टेंस एंड वंस प्लेस पे कोई भी बीट्स नहीं है. ओके, कोई भी 3 डिजिट नंबर अगर आपको लिखना है, 3 डिजिट नंबर, सो वी नीड 3 प्लेसेस. एक होगा हंड्रेड्स, एक होगा टेंस, एक होगा वंस. ओके, सो हंड्रेड्स को शॉर्ट में H लिखेंगे, टेंस को T एंड वंस को O, राइट. एक्सरसाइज 1.2 A part, write the numbers shown on the abacus. One has been done for you. Okay, so this has been done for you. Let's do this. Okay, so 100 place पे देखते हैं, there is 1 beat. Tens place पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So write 9. And ones place में how many beats are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे भी आपके 9 है. So बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे. Now B part, fill in the blank boxes. One has been done for you. Okay, second part देखते हैं. 600s और dash tens और 600 ones. So 600s को आप 60 tens लिख सकते हैं. Okay? So इसी तरह से आप remaining parts करेंगे. Now move on to next topic, place value. So here आपको एक नंबर दिया गया है 136. So 136 आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज अ 3 डिजिट नंबर. सो इन 136 आपकी जो डिजिट 6 है हियर, सो डिजिट 6 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द नंबर ऑफ वंस. ओके, इसी तरह से जो डिजिट 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ 10, एंड जो डिजिट 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ हंड्रेड्स. ओके, ब्रेन बूस्टर, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0. रिमेंबर दैट. 0 किसी भी प्लेस पे हो, किसी भी प्लेस पे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 रहेगी. ओके, एक्सरसाइज 1.3, fill in the blanks. Number 1, in 127 7 is a dash place. देखिए 7 कौन से प्लेस पे आपके? It's at one's place. Okay. Number 2, in 152 1 is at dash place. 1 आप देख सकते हैं 1 है आपका हंड्रेड्स प्लेस पे. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म जो है नंबर का वो लिखा जाता है कैसे? एज एन एडिशन स्टेटमेंट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स. कोई भी नंबर है उसमें जितने भी डिजिट हैं उनके प्लेस वैल्यूज का जो एडिशन स्टेटमेंट होता है वो होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, सो एक नंबर हम कंसिडर करते हैं नंबर 152. ओके, सो देखिए डिजिट्स 152 में 1 5 एंड 2. 1 की प्लेस वैल्यू इज 100. वाई? बिकॉज इट इज एट हंड्रेड्स प्लेस. 5 की प्लेस वैल्यू इज 50 बिकॉज इट इज एट टेंस प्लेस, एंड 2 की प्लेस वैल्यू इज 2 क्योंकि वो वंस प्लेस पे है. नाउ द एक्सपेंडेड फॉर्म इज, हम इन ये जो प्लेस वैल्यूज हैं इनको ऐड करेंगे, मतलब स्टेटमेंट देंगे लाइक 100 प्लस 50 प्लस 2, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 5 टेंस प्लस 2 वंस. ओके, एक्सरसाइज 1.4 A part, write the expanded form of each number. 150. So how you gonna write it? See, 1 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे है, so place value is 100 प्लस 50 प्लस 0 आपका 0 ही रहेगा. ओके, नंबर 2 इज 100. 100 को आप लिखेंगे 100 प्लस
0. ओके, एंड प्लस 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल द टाइम 0 कब का किसी भी प्लेस में होता है, उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होती है. सो जस्ट राइट इट 100 प्लस 0. ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे इसी तरह से. B part, write the numbers corresponding to the given expanded forms. Okay. Number 1 is 100 plus 9 ones. Okay. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 is there, ones is there, but tens तो है ही नहीं. That means tens place पे आपका आएगा 0. So you will write 109, that is 109. 100 plus 60 plus 7. Okay, this is the expanded form. आपको number लिखना है तो जाएगा 167. Right student? So remaining parts आप खुद से करेंगे. Now move on to next topic, comparing of numbers. देखिए हम already हमें less than, greater than and equals to symbols के बारे में already हम जानते हैं, क्लास 1 में हमने पढ़ा था. Okay, less than का symbol होता है this one, greater than का symbol is this one and equal to का symbol होता है this one. So, जब भी आप दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है टू अनदर नंबर. ओके, सो कुछ रूल्स हैं नंबर्स को कंपेयर करने के लिए. चलिए देखते हैं रूल्स फॉर कंपेयरिंग अ 3 डिजिट नंबर. अब आप देखिए क्लास 1 में हमने 2 डिजिट नंबर तक कंपेयर किया था, 3 डिजिट नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिजिट जो आपकी हंड्रेड्स प्लेस पे है सबसे पहले आप उसे देखेंगे. ओके, और न्यूमरल विद मोर नंबर फॉर हंड्रेड्स इज ग्रेटर ऑब्वियसली. एंड जब डिजिट्स आपकी 100 प्लेस पे इक्वल होंगी, ओके, इस केस पे आप क्या करेंगे, फिर देन द न्यूमरल विथ मोर नंबर ऑफ टेंस इज ग्रेटर. सो जो न्यूमरल आपका विद मोर नंबर ऑफ टेंस होगा वो ग्रेटर होगा. ओके, एंड देन अगर डिजिट आपकी टेंस प्लेस पे भी इक्वल हो जाएंगी तो फिर ऑफ कोर्स जिस न्यूमरल में आपके नंबर ऑफ वंस ग्रेटर होगा वो आपका ग्रेटर होगा. और जब सारे डिजिट सेम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि नंबर्स इक्वल है. ओके, तो चलिए कंपेयर करते हैं 2 नंबर्स को. नंबर्स आर गिवन हियर 168 एंड 142. अब यहाँ पे देखेंगे आप डिजिट्स देखते हैं. सबसे पहले हमने उन्हें प्लेस वैल्यूज में रखा, प्लेस वैल्यू चार्ट में, एंड 100 प्लेस पे तो आपकी दोनों डिजिट इक्वल हो गई है, राइट. सो फिर आप कहाँ जाएंगे, टेंस प्लेस पे. सो टेंस प्लेस पे देखिए यहाँ पे 6 और 4. सो विच वन इज ग्रेटर, 6 is greater than 4. That means ये जो नंबर है आपका 168, it is greater than 142, right? Exercise 1.5. A. Compare the numbers and write greater than, less than or equal to sign in the box. 146 and 144. Okay, this is very interesting. देखिए हंड्रेड्स प्लेस पे भी नंबर सेम है. ओके, फिर आप टेंस प्लेस पे जाएंगे तो टेंस प्लेस पे भी सेम है. फिर आप वंस प्लेस पे जाएंगे, हियर 6, हियर 4. सो विच वन इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर, दैट मीन्स 146 इज ग्रेटर देन 144. नंबर 2, आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही नंबर्स इक्वल है, सो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू का साइन. ओके, सो इसी तरह से आपने रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं. नाउ मूव ऑन टू बी पार्ट. कलर द बॉक्स दैट हैव ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, 107, 108, 105. So which one is the greatest? This one. So आप इस बॉक्स को कलर करेंगे. ओके, सो इस तरह से मैंने रैंडमली किया है, आप इसे नीटली करेंगे. ओके, सो बाकी बात भी आप कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. अब ये ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स क्या है ये भी जान लेते हैं. जब भी आप नंबर्स को ना स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखते हैं, आई रिपीट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखते हैं, इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है. ओके, सी दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ से पता चल रहा है ना कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं. एंड जब आप नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में लिखते हैं, यानी बड़े से छोटे में लिखते हैं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, मीन्स डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स आपके. ओके, let's do exercise 1.6. A part, arrange the following numbers in ascending order. Ascending order means smallest to greatest, right? So चलिए देखते हैं. फर्स्ट 156, 172, 105 and 142. So which one is the smallest among all these?
सो आपका सबसे छोटा नंबर इनमें है 105, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 105. यू कैन क्रॉस दिस ऑल्सो सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. देन अब हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट नंबर इज 142, देन 156 एंड लास्ट वन इज 172. ओके, देखिए अब आपके नंबर्स हमने अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट्स आप इसी तरह से करेंगे. नाउ बी पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मीन्स ग्रेटेस्ट टू smallest. Okay, so first one 116, 175, 193 and 140. तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है which is 193. Okay, cross this one. Next is 175. Cross this, then 140 and 116. ओके, देखिए नंबर्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. आई एम श्योर आपको ये टर्म्स मालूम होंगी. ओके, सो चलिए रिविजन करते हैं कि एक्चुअल में ये टर्म्स का मीनिंग क्या है. द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड कैन आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स. वो नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं और आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी, इनका वो आंसर कर सकते हैं, वो कार्डिनल नंबर्स हैं. हाउ मेनी मीन्स हाउ मेनी, लाइक 4, 5, 6 और 7. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नंबर्स लाइक दीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर कार्डिनल नंबर्स. ओके, एंड ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो हमें किसी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं किसी भी ग्रुप में, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी पोजीशन बता रहे हैं ना. सो ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. नाउ आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको हर एनिमल की पोजीशन को इसमें चेक करना है. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th and 10th. ओके, सो कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम इस तरह से लिखेंगे. एंड ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ कोर्स आपके जो पोजीशन दी गई हैं, दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, मास्टर जीनियस. कार्डिनल नंबर्स आर नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग. काउंटिंग के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं 1, 2, 3, 4 कार्डिनल नंबर्स, और जो किसी की पोजीशन को या ऑर्डर को शो करते हैं वो होते हैं आपके ordinal numbers. Okay, progress corner. Number 1, what is the ordinal number for 7? 7 को हम कैसे लिखेंगे? इसका ordinal number is 7th. What is the cardinal number for first? 1. Okay, exercise 1.7. Look at the objects and fill in the blanks. Okay, कुछ objects आपको दिए गए हैं. Okay, और आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपने जाना है. ओके, सो नंबर 1, द ऑब्जेक्ट इन द फोर्थ प्लेस इज. चलिए देखते हैं फोर्थ प्लेस पे कौन सा ऑब्जेक्ट है. लेफ्ट टू राइट बोला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो फोर्थ में आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? बॉटल. ओके, सो यू विल राइट बॉटल, or you can also write water bottle. Number 2, the cup is in the dash place. चलिए कप का प्लेस चेक करते हैं. C, सेकेंड प्लेस पे. ओके, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड प्लेस. नंबर 3, क्रॉस आउट द थर्ड ऑब्जेक्ट. थर्ड ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. सो क्रॉस दिस आउट. ओके चिल्ड्रन, सो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करने हैं. राइट, mental maths questions. Take the correct option. Number 1, which of the following is a 3-digit number? Very simple. See, 2-digit, 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 and this is 3-digit number, so you will pick this out. Okay, and remaining questions आप खुद से करेंगे. Okay, ये सारे आपके जो chapters में हमने पढ़े उन्हीं से related questions हैं. Alright, explore your understanding. Number 1, write the numerals for the following. वेरी सिंपल, आपको न्यूमरल्स लिखना है 133. ओके,
एंड नंबर 2, represent the given numbers on the abacus. abacus में आपको numbers को क्या करना है, शो करना है. लाइक वंस पे आपके 1 2 3 4 5, 7 है आपका टेंस प्लेस पे, यू विल मेक 7 बीट्स, 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आपके 1. ओके चिल्ड्रन, सो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स को कंप्लीट करना है, एंड ऑल्सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.